We are studying Canto 1, Chapter 5, text number 27. So we'll begin. Tasmim tadala daruchir mahamate priyashravasi ashkalita matir mamaha yaham mitatsat asatsaya savama yaya pasha mahi brahmni kalpitam pare. We are on text 28. We discussed this one yesterday. Sorry. कल हम लोगों ने पढ़ा था. We are on 28. इतं शरत्प्रावृषकारतो हरेर् विष्णं वतो मेऽनुशवं यशोमलं सङ्कीर्तयामनं मुनिभिर्महात्मभिर्भक्तिप्रवृत्तात्मरजस्तमोपः इदं शरत्प्रावृषकारतो हरेर् विश्वतो मेऽनुशवं यशोमलं सङ्कीर्तयामनं मुनिभिर्महात्मभिर्भक्ति प्रवत्तात्मरजस्तमोपः. Asta, read the shloka. इत्थं शरत्प्रभक्षिवव्रतो हरेर् विश्ववतो मे नुवासं यशोमलं सङ्कीर्तयामनं मुनिभिर्महात्माभिर्भक्तिप्रवतात्मा रजस्तमोपः. जय माता जी. आप पढ़ो. शरत् प्रवसुकव्रतु हरे विष्णुन्वतो मेन सोमं यशोमलं सङ्कीर्तनं मनं मुनिवर्महामहिमवै भक्तिर्प्रमत्तं रजस्तमोपः. पार्थ श्लोका पढ़ो. पार्थ प्रतिम दत्त, read the shloka. Okay. Word to word meaning. Itham, thus, sarat. Sarat, autumn, pravrikshikau, rainy season, ritu, 2 seasons, array of the Lord, Vishnavataha, continuously hearing, me, myself, Anushavam, constantly, Yasa Amalam, unadulterated glories, Sankirtayamanam, chanted by Munibhi, the great sages, Maha Atmabhi, great souls, Bhakti, devotional service, Pravritaha, begin to flow, Atma, living being, Rajaha, mode of passion, Tama, mode of ignorance, Upaha, vanishing. Thus, during 2 seasons, the rainy season and autumn, I had the opportunity to hear these great souled sages constantly chant the unadulterated glories of the Lord, Hari. As the flow of my devotional service began, the coverings of the modes of passion and ignorance vanished. क्या बोला उन्होंने कि 2 महीने सॉरी 2 सीजन उन्होंने 2 महीने नहीं 2 सीजन एक शरद ऑटम ऋतु और बारिश वाले ऋतु में उनको मौका मिला भगवान का कांस्टेंट गुणगान सुनने का. ठीक है. From the mouth of nectar sages. So as the flow of devotional service began, the coverings and mode of passion and ignorance vanished. तो क्या बोले कि जिस तरह से आगे मेरी सेवा बढ़ती गई भक्ति में उस पर जो रजगुण और तमोगुण है उनकी जो कवरिंग थी मेरे हृदय से वो खत्म होने लग गई. ठीक है. आज तो इसका परपट पढ़ो. Transcendental loving service for the Supreme Lord is the natural inclination of every living being. The instinct is dormant in everyone, but due to association of material nature,
The modes of passion and ignorance cover this from time memorial. If by the grace of the Lord and the great souled devotees of the Lord, a living being becomes fortunate enough to associate with the unadulterated devotees of the Lord and gets the chance to hear the unadulterated glories of the Lord. Certainly, the flow of devotional service takes place like the flow of a river. As the river flows on till she reaches the sea, similarly, pure devotional service flow by the association of the pure devotees till it reaches the ultimate goal, namely transcendental love of God. Such a flow of devotional service cannot stop. On the contrary, it increases more and more without limitation. The flow of devotional service is so potent that any onlooker also becomes liberated from the influence of the mode of passion and ignorance. These two qualities of nature are thus removed, and the living being is liberated, being situated in his original position. तो क्या बोला है अभी जैसे लोग मैक्सिमम क्या होते हैं तमोगुण और रजोगुण में अभी जैसे जब श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देश में प्रचार के लिए गए थे तो उन्होंने एक कविता लिखी थी बहुत फेमस पोएम है प्रभुपाद का जिसमें प्रभुपाद वो कहते हैं नचाओ नचाओ रे नचाओ नचाओ कृष्ण एज ए डिजायर तो उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि कृष्णा ये जो लोग हैं ये सारे तमो और रजोगुण वाले हैं ये इस भागवत का जो मैसेज है इसको कैसे सुनेंगे इसको तो सुनेंगे नहीं आप कृपा करोगे तो शायद तब शायद ये सुन लें तो ऐसा उन्होंने बोला था तो अब यहाँ पे क्या बात आ रही है यहाँ पे डिवोशनल सर्विस का नेचर बताया जा रहा है ठीक है तो जो प्रेमा भक्ति है भक्ति होती है भगवान की वो दिव्य होती है वो गुणों के अधीन नहीं होती ठीक है जैसे हमने ये उदाहरण हम बहुत बार पढ़ते हैं कि जैसे अग्नि के संपर्क में अगर लोहे को रखा जाए तो लोहा भी कुछ समय बाद अग्नि की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है उसी प्रकार से जो तमोगुण और रजोगुण में है यदि वो प्रेम भक्ति में लगे तो अपने आप उनकी जो तमो और रजोगुण है वो चला जाता है ठीक है इवन क्या बात जाने की क्या और उनकी जो भक्ति है वो जैसे जो रिवर होता है बहता रहता है और जाके समुद्र से मिल जाता है तो उसी प्रकार से जो भक्ति में लग जाते हैं अब देखिए जो कहते हैं बहता पानी हमेशा साफ होता है सुना है आपने कहते बहता पानी हमेशा साफ होता है अब नदी में कई लोग कपड़े धोते हैं कई लोग पहले ज़माने में तो ये होता था उसी नदी में कपड़े धो रहे हैं उसी में नहा रहे हैं उसी को पीने के लिए यूज़ कर रहे हैं क्यों कहते थे क्योंकि बहता पानी साफ होता है तो मतलब बहता जाता है तो वो गंदगी साफ होती रहती है तो डेट्स वाई से द फ्लोइंग रिवर तभी कहा जाता है इन भक्ति ऑलवेज लाइक लाइफ इज लाइक अ रिवर कीप फ्लोइंग just raise your hands up and depend on Krishna. So जो रिवर की तरह बहती रहती है भक्ति जब हम लोग करते हैं तो अगर कोई उसमें दोष भी आते हैं तो वो भी हट जाते हैं ठीक है और जब उसको शुद्ध माना जाता है तो अगर कोई तमोगुण रजोगुण है भी हमारे जीवन में अगर हम भक्ति में तो अपने आप ही वो खत्म हो जाते हैं ठीक है क्योंकि भक्ति की इतनी पोटेंसी है कि कोई भी व्यक्ति सीधा कर देखे भी इसके बारे में तो वो भी शुद्ध हो जाता है ठीक है सो क्या है तो these two quality of nature are thus removed so passion और रजोगुण और तमोगुण तो निकल जाता है हमारे में से जब हम भक्ति करते हैं ठीक है और इस प्रकार अब जैसे यहाँ में वो स्टार्टिंग में लिखा है कि हर जीवात्मा का नेचुरल इंक्लिनेशन है भगवान की सेवा करना मगर वो क्या है रजो तमोगुण में होने की वजह से क्या है अज्ञानतावश या तमोगुण में होने की वजह से भगवान की भक्ति नहीं लेता मगर जब भक्ति शुरू करता है वैष्णव कृपा से तो अपने आप ही ये जो दो गुण है वो निकल जाते हैं ठीक है और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में स्टैब्लिश हो पाता है विल मूव टू द नेक्स्ट श्लोका तस्यैवं मेनुराक्तस्य भ्रश्रितस्य तेन श्रद्धानस्य लालस्य व्यन्तशानुचरस्य च I am very much attached to those sages. I was gentle in behavior, and all my sins were eradicated in their service. In my heart, I had strong faith in them. I had subjugated the senses, and I was strictly following them with body and mind. तो हमने बोला अब ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आसक्ति होना साधुओं वैष्णवों के प्रति ठीक है कि जैसे कल भी मैं बता रही थी निताई पद कमला दृढ़ता से हमें उनके चरण कमलों को पकड़ना है ठीक है तो उसी प्रकार से हमें दृढ़ता से हमारी आसक्ति होनी चाहिए साधु वैष्णवों के चरण कमलों से
जब वहां आसक्ति रहेगी तो भौतिक आसक्ति नहीं रहेगी, ठीक है। तो सॉरी, तो नारद मुनि बता रहे हैं कि उनकी आसक्ति थी, एट दे नाउ ही वाज अटैच्ड टू द सेजेस। उनका बिहेवियर बहुत जेंटल था, ठीक है। मैं कह रही कि मेरे जितने भी पाप थे वो सेवा करने से मुक्त हो गए। एंड इन माई हार्ट आई हैव स्ट्रॉन्ग फेथ इन देम, और मेरे हृदय में उनके प्रति एक पूर्ण श्रद्धा थी। एंड आई हैड सब्जुगेटेड द सेंसेस एंड स्ट्रिक्टली फॉलोइंग, और इस तरह से मैंने अपने इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया था, और मैं स्ट्रिक्टली अपने शरीर और मन से, तन और मन से उनको फॉलो कर रहा था। तो जो हम लोग पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास रहता है साधु गुरु वैष्णव पे, तो हमारा हृदय जो है बहुत श्रद्धा रहने की वजह से हम अपनी इंद्रिया को कंट्रोल कर पाते हैं, और स्ट्रिक्टली जो भी नियम पालन है उसको अपने तन और मन से पूर्णतः फॉलो कर पाते हैं, ठीक है। सो आज तक पढ़ो इसको भी। These are the necessary qualification of the prospective candidate who can expect to be elevated to the position of a pure, unadulterated devotee. Such a candidate must always seek the association of pure devotees. One should not be misled by pseudo devotee. He himself must be plain and gentle to receive the instruction of such a pure devotee. A pure devotee is completely surrendered soul unto the personality of Godhead. He knows the personality of Godhead as the supreme proprietor, and all others are his servants. And by the association of pure devotees only, one can get rid of all sins accumulated by mundane association. A neophyte devotee must faithfully serve the pure devotees, and he should be very much obedient and strictly follow the instructions. These are the signs of the devotee who is determined to achieve success even in existing duration of life. अब ये जो गुण है ये किस कैंडिडेट के, हु कैन बी एलिवेटेड इन डिवोशनल सर्विस, ठीक है। तो ऐसा जो कैंडिडेट है, ही मस्ट बी, इफ यू रियली वांट टू प्रोग्रेस देन टेक द एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज, सर्व देम, बट डोंट मिसलेड बाय द सूडो डिवोटी। जैसे मैंने बोला कली चेलास भी हैं कि तिलक लगाया, कंठी पहना, शिका पहना, मगर भक्ति की नहीं, उनके कुछ और ही मोटिव है। सो बी वेरी केयरफुल विद देम। जो शुद्ध भक्त है वो पूर्णतः भगवान को समर्पित होता है, और ऐसे शुद्ध भक्तों का संग करने से हमारे जितने भी पाप हैं, कहते हैं बाय द एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटी ओनली, इट्स ओनली बाय द एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटी वन कैन गेट रिड ऑफ ऑल सिंस एक्यूमुलेटेड बाय मंडेन एसोसिएशन। अब भौतिक संग तो बहुत रहा ना हमारा, बहुत सारे पाप भी एकाग्रित किए हैं, तो वो सब कैसे मुक्त हो सकते हैं? केवल शुद्ध भक्तों के संग से। A neophyte devotee must faithfully serve the pure devotee. हमें श्रद्धा पूर्वक शुद्ध भक्त की सेवा करनी चाहिए, एंड आई शुड बी वेरी मच ओबीडियंट। ओबीडियंट मतलब कि उनकी बात सुननी चाहिए और उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। जो ऐसा करता है वो एक साइन है, लक्षण है भक्त के, जो डिटरमाइंड है इस भक्ति पाथ पे बढ़ने के लिए, ठीक है। सो इफ यू वांट टू प्रोग्रेस देन हैव द फुल फेथ ऑन डिवोटी, लिसन टू देम एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन whom you are following, ठीक है, और उनकी सेवा कीजिए। We'll move to the next verse. ज्ञाननं गुह्यात्मं यत् ज्ञाननं गुह्यतं यत् साक्षात् भगवतोदितम् अन्वभोचन् गमिष्यन्तः कृप्यदीना वत्सलः। As they were leaving, those Bhakti Vedantas, who are very kind to poor hearted souls, instructed me in that most confidential subject, which is instructed by the personality of Godhead Himself. क्या बोला कि वो जो भक्ति वेदांतिस्ट थे वो बहुत ही मतलब मैं समझ रही देवर द प्योर डिवोटीज, प्योर, काफ़ी प्योर हार्टेड थे। उन्होंने उनको इंस्ट्रक्ट किया कि ज्ञान भक्ति, भगवान की प्रेमा भक्ति किस तरह से करनी है आपको इन चीज़ों में, तो वो बता रहे हैं नारद मुनि। पूजा माता जी आपका नेट सही है? अगर आपका सही है तो इसका परपट पढ़िए। जी माता जी। A pure Vedantis or Bhakti Vedantas instructs follower exactly according to the instruction of the Lord Himself. The personality of Godhead, both in Bhagavad Gita and all other scriptures, has definitely instructed men to follow the Lord only. The Lord is creator, maintainer, and annihilator of everything. The whole
Manifested creation is existing by his will, and by his will, when the whole show is finished, he will remain in the eternal adobe with all the param, para, paraphernalia. Before the creation he was there in eternal adobe, and after the annihilation he will continue to remain. He is not there for one of the created being. He is transcendental. In Bhagavad Gita the Lord say, the long before instruction will turn. Before the instruction was imparted to Arjuna, the same was instructed to the sun god, and in course of time, the same instruction being wrongly handed and being broken was again instructed to Arjun, because he was a perfect devotee and friend. Therefore, the instruction of Lord can be understood by devotee only and no one else. The impersonalist who has no idea of the transcendental form of Lord cannot understand this most confidential message of the Lord. The expression most confidential is significant here because knowledge of devotional service is far above knowledge of impersonal Brahman. Jnanam means ordinary knowledge or any branch of knowledge. This knowledge develop up to the knowledge of impersonal Brahman. Above this, when it is partially mixed with devotion, such knowledge develop to knowledge of Paramatma, or all pervading Godhead. This is more confidential. But when such knowledge is turned into pure devotional service and the confidential part of transcendental knowledge is attained, it is called the most confidential knowledge. This most confidential knowledge was imparted by the Lord to Brahma, Arjun, Uddhav, etc. तो यहाँ पे क्या बात बोली जा रही? सो कि वो ये जो भक्ति वेदांतिस्ट थे, दे ओनली गिव द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लॉर्ड. जो देखो जो शुद्ध भक्त है वो एज इट इज प्रेजेंट करेगा जो भगवान ने बोला है. ठीक है, जो श्रील प्रभुपाद ने जो भगवत गीता यथारूप में दी, जैसे भगवान कृष्ण ने बोला वैसे ही उसको प्रस्तुत किया गया, तभी इतने लोग कृष्ण भावनामृत बने. तो उनका काम होता है जैसे एक पोस्टमैन होता है, डिलीवरी बॉय. ठीक है, अब किसी ने सपोज आपने एक कुरियर भेजा है, ठीक है, किसी अपने मित्र को. अब पोस्टमैन का क्या काम है? उसको लेके तो सीधा जाके तो उसको एज इट इज दे देता, बीच में खोल के कुछ नहीं देगा. ठीक है, तो वैसा ही काम होता है एक शुद्ध भक्त का, मैसेज लेना अपने आचार्यगण, अपने सीनियर्स भगवान से, और डायरेक्टली उसको दूसरी जीवात्मा तक पहुंचाना एज इट इज. ठीक है, विदाउट एनी मिक्सचर. सो और यही चीज भगवत गीता में बताया गया, और ये भी बताया गया कि भगवान, यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है वो मैं आपको बता दूं कि बोला जाता है कि अब जैसे भगवान की क्रिएशन है, सब कुछ ओरिजिनल तो वही है, ओरिजिन तो वही है, मगर वो क्रिएशन के अधीन नहीं है. ठीक है, वो उससे दिव्य है, मतलब गुणों के अधीन नहीं आती. ठीक है, सो अब यहाँ पे जो शुद्ध भक्त है वो हमें जो ज्ञान देते हैं वो कॉन्फिडेंशियल होता है, क्योंकि मायावादियों को भी उसका आइडिया नहीं होता. यहाँ बोला जाता है जो भगवत गीता है वो भक्तों को ही समझ में आती है, क्योंकि मायावादियों को भगवान का भगवान फीचर नहीं ना पता, उनको सिर्फ इम्पर्सनल फॉर्म ब्रह्म ज्योति पता है. तो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज जो है भगवान के बारे में वो केवल भक्त लोग ही बता सकते हैं, जो ब्रह्मवादियों को भी कोई आइडिया नहीं है. ठीक है, ज्ञान होता है नॉर्मल नॉलेज. ज्ञान जब थोड़ी भक्ति के साथ मिक्स हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? परमात्मा का ज्ञान. ठीक है, और जब उसमें और ज्यादा भक्ति, जब शुद्ध भक्ति आ जाए तो उसको ब्रह्म भक्ति कहा जाता है, जो पूरी तरह दिव्य स्वरूप में होती है. सो सो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज जो है भगवान लॉर्ड ने ब्रह्मा जी को दिया. ठीक है, फिर उसके आगे वही परंपरा चला, और ये हमारा जो संप्रदाय है वो कौन है? ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय. तो ब्रह्मा जी हमारे जो संप्रदाय के गुरु हैं, तो वहां से हमें जो ज्ञान है वो परंपरा में एज इट इज आ रहा है. ठीक है, so this is the most confidential knowledge. So that's the, तो shall we stop here today? So आज यहीं पे stop करते हैं 8:30 होने वाली. So any of you having any questions, comments or any realizations, please go ahead. किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ बताना चाहे तो आप लोग बता सकते हैं. सॉरी आज डिले होने में क्लास में, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है और काफी तूफान चल रहा है बाहर, तो that's why I got little late. या आप में से किसी का कोई प्रश्न रहेगा? यस पूजा माता जी, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? वैसे आप बोल रहे हो कोई सवाल नहीं है, क्या समझ में आया आपको? माता जी यही मतलब लाइक कि क्या कि हाँ हम हमें लाइक जो गुरु हैं या जो संत है उनके मतलब उनको फॉलो करना चाहिए, एंड वी शुड मतलब क्या बताऊं मैं. चलिए कोई एक ना पॉइंट माता जी. आपको याद रहा, बढ़िया ये वाला. तो जो भी हमारे गुरुजन है, सीनियर वैष्णव संत होते हैं, हमें उनके
चरण हमें उनकी इंस्ट्रक्शन को एज इट इज फॉलो करना चाहिए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जी और कुछ? जी एंड वही था अभी जो नॉलेज जो मतलब गॉड जो कृष्ण मतलब कृष्ण है उन्होंने सूर्यदेव जी को नॉलेज दी और उसके बाद अर्जुना को दी और वो अपने प्योर डिवोटीज है वही ये नॉलेज को समझ पाते हैं बाकी लोग नहीं समझ पाते। जी जी यही था। तभी कहते हैं ना, जो शास्त्र है वो हमें भक्तों के संग में पढ़ना चाहिए, तब हमें समझ में आएगा, नहीं तो हमें समझ में नहीं जी आता। धन्यवाद पूजा मैम। जी यस पार्थ प्रथम। दी वो जो आपने कहा था ना कि लोहा आग के पास आके वो हो जाता है, वो मेरे को वो आपने किस में बोला? वो मैं ये कह रही थी कि अब जैसे कृष्णा ट्रांसेंडेंटल है, डिवोशनल सर्विस दिव्य है, ठीक है, तो जब इनके संपर्क में रहते हैं तो हम भी दिव्य हो जाते हैं, मतलब गुणों के अधीन नहीं रहते। समझ में? हाँ पार्थ, आई वाज हाँ टॉकिंग मतलब कि अबाउट मैटर ऑफ एसोसिएशन, कि आप जिसका संग करते हो आपका वैसे ही रंग हो जाता है। अब जैसे वो लोहा अग्नि के साथ रहेगा तो अग्नि की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। उसी प्रकार से द मोर वी आर इनटू कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी, द मोर वी कैन फील लेस द इन्फ्लुएंस ऑफ मोड्स ऑफ नेचर। आए समझ में? ओके ओके। और दी मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब जैसे ये जो आपने गुणों के बारे में बताया ना, ये गुण इनेट होते हैं क्या फिर, मतलब जैसे कि किसी के एसोसिएशन में जाके भी गुण चेंज हो सकते हैं ऐसा है, या फिर ये रहता ही है डोरमेंट फॉर्म में ऐसा कुछ? देखो, जो हमारा पर्टिकुलर नेचर है, एक जीवात्मा जो एक्वायर करती है अपने पुराने कर्मों के अनुसार, वो वैसे ही रहता है। आप लोगों ने देखा होगा, कई लोग पैशनेट होते हैं, कई बहुत गुडनेस में होते हैं। सो एक पर्टिकुलर नेचर तो हम सबका है, ठीक है, हर एक का एक अपना मतलब नजरिया है या एक बिहेवियर है। मगर जब हम भक्ति में आते हैं तो नेचर जो है वो सरपास, चेंज तो पूरी तरह नहीं होता, मगर आप कह सकते हो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है। अभी जैसे आई वाज क्वाइट पैशनेट पर्सन, इतनी पैशनेट भी नहीं, मतलब यू कैन से मिक्सचर पैशनेट इन दिस, आई वाज क्वाइट वेरी passionate about my career and all those things, but after coming to Krishna consciousness I become passionate about book distribution. So I was using my passion in a different scenario. So I wanted to do something in material world, so similarly now I'm doing through spirituality. So वो यहाँ पे इस तरह से चेंज आता है। जो मेरा एक नॉर्मल नेचर है वो तो अभी भी चेंज नहीं है, मगर ये है कि भक्ति में आने से वो दिव्य बन जाते हैं कि भगवान की सेवा में लग जाता है। सो दैट्स हाउ द इन्फ्लुएंस इज। अंडरस्टैंडिंग पार्थ? ओके ओके। और कोई मतलब प्रश्न? मैं अगर हाँ, मतलब नहीं ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं, मतलब वही कि जब हम बोलते हैं कि आप कृष्ण कॉन्शियस में आओगे पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, ये बोलने के बावजूद भी ट्रांसफॉर्म इस यदि वजह से हो इतना जाएगी सारा कि हमारे जो मतलब गुण है, ठीक है, जो अच्छे गुण है वो ज्यादा उभर के बाहर रहेंगे, बुरे वाले वो छुप जाएंगे कहीं ना कहीं। अंडरस्टैंडिंग? वी अटेन द गॉडली क्वालिटीज ऑटोमेटिकली व्हेन वी बिकम डिवोटी, तो अपने आप हमें जो अच्छे गुण है वो आने शुरू हो जाते हैं। आई रिमेम्बर इन माय इनिशियल डेज आई वाज वेरी अग्रेसिव इन माय प्रीचिंग, अग्रेसिव इन द सेंस क्वाइट you can say very straightforward and strict regarding saying the things. I was a very straightforward person when I was in Krishna. Initially, अभी भी हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है, बट आई वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। किसी के मुंह पे बोल देना कि आप ऐसा ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए, मतलब डायरेक्टली एज व्हाट प्रॉपर इज, मतलब लाइक अ बॉम्ब यू कैन से, जस्ट ब्लास्टिंग। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आई हैड इफ लाइक जैसे सीनियर जो मेरे डिवोटीज रहे हैं उनका जैसे संग रहा मेरा, तो नाउ आई हैव डेवलप्ड अ लिटिल लविंग नेचर आल्सो। सो इनिशियली शायद इतना नहीं था, या मे बी यू कैन से इट वाज देयर बट आई वाज नॉट एक्सप्रेसिव टुवर्ड्स द डिवोटीज, बट विद द टाइम now I have become little expressive also regarding, अब इतना straight forward मैं अभी भी हूँ, but now it might change in my behavior how I speak to them and tell them about the matter. So वो नहीं, अभी भी जहाँ पे strictly बोलना है वहाँ बोलना है, मगर now I have become little loving also. Now I can say little bit, but initially I was very aggressive. So I remember devotees saying, commenting about me like that, so you are very aggressive in your preaching. So then आप मुझे बुरा भी लगता था, पर धीरे धीरे फिर अब जैसे भक्ति में बढ़ते हैं तो थोड़ा लविंग नेचर भी आया, ऐसी बात नहीं। ये नहीं कि पहले नहीं था, अभी थोड़ा ज्यादा है, वन कैन से। सो दैट आई हैव सीन द चेंजेस, दिखता है। यस मैम। अभी जैसे पहले तो क्लास था तो अभी 8 बजे क्यों नहीं आए लोग, उतने बजे ही आना चाहिए, तो आई वाज स्टार्टिंग लाइक चेस्टाइजिंग डिवोटीज, बट अभी मैं इतना नहीं बोलती, ऐसे इट्स ओके, हूएवर इज कमिंग इट्स फाइन। यस पार्थ ब्रदर।
I have seen some changes in me. So हाँ जी समझ। okay. Yes. Anything else? अगर ये तो मुझे 2016-15 में मिले होते ना, तुम्हारी बहुत लगी होती। लेकिन इस सेंस अगर कुछ भी थोड़ा बहुत किया होता था, I was like chastising anything. But now I have become little normal. Normal in the sense strict with oneself, lenient with others. So this was the principle. सुना पहले भी था, मगर पहले भी I was like जैसे मैं खुद strict हूँ वैसे दूसरों के लिए भी थी. But now I have become little lenient about it. Lenient means philosophy को लेके नहीं, principles को लेके नहीं, but in our behavior. Yes. Yes. और किसी का कोई प्रश्न है? Yes, हरे कृष्ण. Yes, और किसी कुछ understanding on what they understood? Yes, Akshay, what's your understanding from today's study? जी मुझे वो लास्ट वाले पॉइंट में थोड़ा सा डाउट है, मतलब वो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज और इम्पर्सनल, Yes, confidential knowledge. We forgot it. तो वो मुझे समझ, Yes. मतलब आप उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो? किसको? मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज को? हाँ, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। ओके, सो देखिए, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल मीन्स काइंड ऑफ अ सीक्रेट, ठीक है? तो अब हम जैसे अब भौतिक जगत में कभी जो आत्मा है अज्ञानता में, कोई नहीं जानता कि हमें भगवान धाम जाना है, भगवान को भी धाम भी है। हम जो स्पिरिट सोल है, बॉडी नहीं है, ठीक है? व्हाट द रिलेशन वी हैव विद द लॉर्ड एंड व्हाट इज द पर्पस वी हैव इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, ये किसी को इतना पता नहीं, ठीक है? और किसी को ये भी नहीं पता कि सिंपली बाय एंगेजिंग इन डिवोशनल सर्विस वी कैन गेट आउट ऑफ दिस साइकिल. Nobody knows. So in that sense, this is a confidential knowledge, and it only devotees can know this. अब कोई मायावादी उनको भी नहीं पता, वो तो इतनी तपस्या करते हैं, मगर फिर भी ब्रह्म ज्योति तक ही रहते हैं, वहां से वापस गिर के आ जाते हैं भौतिक जगत में. तो ये उनको ज्ञानी को भी नहीं पता, कर्मिस को भी नहीं पता. सिर्फ एक भक्ति है जो बता सकता है अल्टीमेट पाथ, हाउ टू गो टू कृष्ण, हाउ टू गो टू गोलोका. इन दैट सेंस इट इज अ मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज. अंडरस्टैंडिंग इतनी आसानी से लोग समझ भी नहीं पाते. आप भक्ति के बारे में बताओ लोगों को आसान तरीका नहीं पसंद, बोलेंगे तपस्या करनी है, उसको ज्यादा अपनाएंगे, और भक्ति की कॉन्फिडेंशियलिटी को नहीं समझ पाते आसानी से. इन दैट सेंस आल्सो इट इज कॉन्फिडेंशियल. अंडरस्टैंडिंग अक्षय? माता जी का अजीब सा थॉट था. हाँ जी. मतलब ऐसे ही थॉट दिमाग में आ रहा था कि अल्टीमेटली जाना तो वहीं पर है, मतलब कभी ना कभी तो वहीं जाएंगे. यस, एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू गो गोलोका. यस, तो मतलब ऐसा क्यों कि एकदम अभी जाना है, मतलब वी कैन डू आवर स्टफ, मतलब इट्स अप टू, और मतलब अभी इतनी जल्दबाजी क्यों? तुम्हें बाहर में जाना, मतलब अल्टीमेटली नो प्रॉब्लम, यू वांट टू बी, तो ऐसा आई डोंट वांट, मतलब मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे एटलीस्ट कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, बट वो थॉट क्यों आ रहा था? ठीक है. अभी जैसे कोई भी बीमार व्यक्ति है, ठीक है, सपोज अभी जैसे कोरोना की महामारी फैली थी, ठीक है, अल्टीमेटली अभी तो वैक्सीन आई नहीं थी ना, अभी आई है, ठीक है? तो मैनी पीपल गॉट कोविड-19 पॉजिटिव, ठीक है? रिकवरी रेट भी, ये तो खैर अभी बाद में आना शुरू हुआ, इनिशियली तो इट वाज लाइक अ काइंड ऑफ अ वेरी बिग थिंग, कोरोना थिंग, है ना? अब किसी को लग जाए कोरोना, तो वो क्या चाहेगा कि इसको जल्दी से खत्म करें, इसकी जल्दी से दवाई आए, या बोलेंगे कि बस कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो आ ही जाएगी, कोई नहीं, चलने दो. और पीपल वांटेड दैट सिचुएशन. नाउ टेल मी, कोरोना की वजह से इट वाज अ टोटल लॉकडाउन फॉर अ ईयर, और अभी भी इतना ओपन नहीं है, दो नाउ इट्स ऑलमोस्ट ओपन, बट स्टिल सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस आर देयर. तो आप क्या उस समय कोई क्या सोचेगा जब कोरोना का टाइम चल रहा होगा कि चलो कभी ना कभी तो हटेगा ही, ये पूरी तरह थोड़ा ना रहेगा यहाँ पे, तो कोई नहीं, एक दिन तो हटना ही है, तो चलो होने दो आराम से, क्या दिक्कत है? So your attitude will be like that, or your attitude will be like कब वैक्सीन आएगी, कब ये खत्म हो, सब कुछ चीजें नॉर्मल हो. What will be your attitude actually? सेकंड वन. What's your attitude? हाँ, सेकंड वन. tell me what's your attitude कि ये जल्दी से खत्म हो जाए, because nobody want to suffer. कोई सफर नहीं होना चाहता, घर बैठ के लॉकडाउन चार दीवारी में कोई नहीं रहना चाहता. Everybody wanted to be a normal life, isn't it? और मैं आपको बता दूं, भौतिक जगत में हमारी नॉर्मल लाइफ नहीं है. This is total suffering. Our normal position is being the servant of Lord, and then we will be actually happy. So it's a मुझे तो foolishness, सफरिंग. like saying, "Let me delay, कोई बात नहीं, चल जाना तो है, फिर कभी जाएंगे." Then you are voluntarily accepting suffering. अब voluntarily बोल रहे हो, नहीं नहीं, मैं ठीक है, तकलीफ में ही ठीक है, कोई बात नहीं, एक न एक दिन तो जाना, तब तक करते हैं. It's a so called enjoyment that you say कि चलो enjoy कर लेते, काम कर लेते, उसके बाद जाएंगे.
but that is a so called enjoyment. It's in suffering actually. आप ये कहना चाहते हो कोई बात नहीं, मैं थोड़ी सफर कर लेता हूँ, माया की और लात घूसे खा लेता हूँ, कभी ना कभी तो जाना है तो फिर चल लेंगे, बट तुम्हें नहीं पता कि वो कितने जन्म ले लेगी ये जो इच्छा है तुम्हारी, क्योंकि हर जन्म यू आर एक्सेप्टिंग दैट यू विल गेट अ ह्यूमन फॉर्म, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट अ ह्यूमन फॉर्म इज वेरी रेयर। और जब मौका मिलता है तो हमें इमीडिएटली उसका फायदा उठा के, तो इंटेलिजेंट पर्सन विल भी, अब मौका मिला तो फटाफट यहाँ से भागने की बात करो, कौन रुकना चाहेगा? So it will be foolish thought to think about कि एक ना एक, obviously everybody is destined to go Goloka, but it's it up to us when we wanted to go, कि हम कब जाना चाहते हैं। अब जाना चाहते हैं, अभी से सीरियसली भक्ति करेंगे और जाएंगे। अब लोग जो वेट करना चाहते हैं कि नहीं भाई कोई नहीं, रहने दो इधर ही ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे, तो भाई आप अभी तो लाइक कलयुग, यू माइट बी इन अ राइट स्टेट अक्षय, आगे ये जो कलयुग है बहुत बुरा होने वाला है, so you don't know what kind of body you will be getting and you how much torture you are going to get through the Maya, you know. So better not to have this idea ever in the mind, even in dream. One should think, how should I No, I was not having that thought. Actually, that certain, I mean, suddenly that come into my mind, and then I started to think about it. कि क्या है मतलब but ये this क्यों is आ a रहा है foolish पहली बात thought. तो. It's only a foolish people we think about it. चलो कोई नहीं, बीमारी है चली जाएगी, कोई नहीं, थोड़ी देर और भुगत ले. This is foolish thought. नहीं, फिर बाद में मैंने उस पे वो नहीं दिया, टेंशन नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है मुझे सबके सब सफर करते हुए दिखते हैं, तो मुझे ऐसा कोई वो आता ही नहीं है कि उनका कोई एंजॉयमेंट, मुझे इंटरेस्ट नहीं आता है। तो फिर वो बस मैं बस ऐसा सोच रहा था कि ये सही है या नहीं, तो मुझे बस मतलब एक ओपिनियन चाहिए Oh, था now you understood कि it is not a right thought to कि think about it. कि I should एग्जैक्टली दैट इज नॉट अ राइट थॉट एक्चुअली, क्योंकि वो आपकी not a प्रोग्रेस ही point of डिले view. करेगा और आपकी शक्ति की बढ़ाएगा और कुछ नहीं करेगा। Obviously now we have gotten, so we should immediately grab the opportunity and just go take the advantage. Otherwise it's just a foolish thought to think about it. I'm not saying you too foolish, I'm saying thought a foolish is thought, not you are foolish. It was just a thought. I am not taking any Thought action foolish. on कि it. ऐसा विचार कोई बीमारी ग्रस्त है और बोले कोई नहीं बीमारी है रहने दो कोई बात नहीं, ठीक क्या ही होना है, कभी ना कभी तो होना ही है, तो हो जाएंगे, ये तो फुलिश है कि बीमारी भुगतना चाहते हो। So गलत है, ठीक है। So intelligent person will think when I can go back to God. King Kulasekara, he was praying, अपने जो मुकुंद माला स्तोत्र है उसमें प्रार्थना करते हैं, ठीक है। प्रभुपाद को ये प्रेयर बहुत पसंद है। I will read it out. It's MM30. It's Mukunda Mala Stotra, verse 30 verse. Let me read it to all of you. वो प्रार्थना कर रहे हैं कि क्या मिला मुकुंद मला स्तोत्र में. Let me read out the verse to you. King Kulasekara की prayers नहीं है. See what he was praying and then see what should be. हमारा क्या mood होता है? क्या बोला मैंने? Verse number 38 नहीं 33 sorry. हाँ कहते हैं कृष्ण त्वदीय पद पंकजा पंजरानंतम अद्वैव में विशतु मानस रजा हंस प्राण प्राण समय का पवत्त पिता कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते. क्या कह रहे हैं? ओ लॉर्ड कृष्णा, at this moment let the royal swan of my mind enter the tangled stems of the lotus of your feet. How will it be possible for me to remember you at the time of death when my throat will be choked up with mucus, bile and hair? तो ये अपनी नेचुरल डेथ का वेट नहीं कर रही, कह रहे हैं भगवान अभी मैं जवान हूँ, पूरी चेतना हाथ में लगी है, लेट मी डाई नाउ, अभी माय माइंड इज फिक्स्ड, यू नो व्हेन आई गेट ओल्ड पता नहीं क्या होगा, काप विथ मतलब क्या बोल रहा है कि म्यूकस है, थ्रोट पता नहीं बंद हो जाएगा, बोला नहीं जाएगा, तो इसी अवस्था में कह रहे वेट ही नहीं करना चाहते, कहते अभी अभी क्योंकि अभी मेरा मन फिक्स है, आप अभी हो जाए. So he wanted so eagerness he was having. So that should be our mood, that we should not say delay, anytime delay, no delay. Immediately finish the business and go back to God. Okay? So we should be having that. Okay. So hope it clear to everyone. So thank you Akshay for your this thought. Okay. और किसी को कुछ कहना है या प्रश्न है? We are having 3 minutes. So any of you having any questions or comments? Yes. किसी और का भी प्रश्न है? Krishna. Yes, any of you having any questions or comments? Okay, if nothing, then we will be stopping here. So let's chant it and Hare Krishna. So don't delay the process. Sorry, just
take advantage and finish the business as soon as possible. Okay, let's chant it. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare, Krishna Hare Hare Rama, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Santrashram Bhagavatam ki jai, Shrupad ki, Jai, all the somebody would jai. Thank you so much. See you all in the evening Bhagavad Gita class. Sorry कल मिल नहीं पाई because suddenly कहीं होम प्रोग्राम में जाना पड़ गया, तो वहाँ से रात को हम लोग कोई 9:30 बजे घर वापस आए तो लेट हो गया. So hopefully today there will be class. Okay. See you all in the evening Bhagavad Gita class. Hare Krishna. Hare Krishna.